Guys, what a great start to the morning. CAT का notification out हो चुका है. CAT का notification आ चुका है. Hello folks, CAT notification is out. Hey everybody, so the CAT notification is finally out and I know what you must be thinking. Those who started preparing 6 to 8 months back, they must be thinking, what can we do to maximize our scores? And those who started preparing right now or who started preparing 1 month back, they must be thinking, can we really crack the exam in a matter of like 3 or 4 months? So I'll be answering this question and I'll be sharing my tips with you guys because last year I was at the exact same place where you guys are right now. Okay, welcome back to my channel. I am Amol Katiyar, a first year VGP student at IIM Visakhapatnam, and let's start. So firstly, addressing the elephant in the room, can we really crack the exam in 3 or 4 months? The answer is yes. I am not at all exaggerating. The exam can be easily cracked in a matter of like 3 or 4 months. I'm not saying you will score 99.5, 99.9 percentile, but yes, you can score decent. And for me, decent is approximately above 95 or something. Okay, so yes, you can crack the exam. Now coming to the tips, what all tips I followed last year, what all things helped me, and just a disclaimer, these things are suggested by me. I am sharing my personal opinions, okay, and I'm not preaching anything by this video. So it's on you. If you want to follow these tips, then you can freely do that. So firstly, starting with some general things on which everyone should focus right now, irrespective of the fact that they are good with cons or VRC or LRDI. Okay, first thing first, mocks. My DMs are filled right now with this one query. Should we start solving mocks after we complete our syllabus, or we can do that right now? Guys, this is high time you should start giving your mocks right now. Even if you have completed only 30 or 40% of your syllabus, it doesn't even matter. You should target attempting at least 3 to 4 mocks per week. That is like the minimum thing you can do right now. Okay, so start giving mocks, and let's move to the second point, which is analysis of those mocks, which is very important. So this thing called mock analysis, this can be very disheartening at times because you'll see, oh my god, I'm getting so many negatives. So what I used to do was, I used to pick only 2 to 3 subjects from which I was getting negatives. For example, in quants, I'm seeing, okay, I have got negatives from time speed distance, geometry and profit and loss. So till the time I gave my next mock, I used to study only those 3 chapters. I won't even care if I got negatives from other chapters also. I'll see them later. Okay, till the next mock, I used to practice, I used to study those 3 chapters, and ऐसा करने के बाद उन chapters को दोबारा read करके, दोबारा revision करके, in my next mock मेरा सिर्फ एक focus होता था कि जो questions उन chapters से आए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए. And so when you will keep repeating on this process, in 10 to 12 mocks, you will see कि हाँ, you have completed the whole syllabus, you have even revised the whole syllabus, and now your efficiency is way better than what it used to be 12 mocks back. Okay, so please try this. It is very efficient when it comes to analysis because analysis is very time taking. And while we are on this mock analysis part, let me address one more problem. When it comes to analysis, you have many doubts, and finding quick and efficient solutions to those doubts can be a cumbersome task. And so today I have an awesome resource for you guys which offers quick and efficient doubt solving. So now you do not need to search for those solutions online. You do not have to wait for your teachers to reply in those online classes, and especially for those people who prepare by themselves. For those people, this thing can really turn out to be a boon. Okay, so guys, presenting PrepWiz. PrepWiz is an online platform which offers quick and efficient doubt solving. All you have to do is visit their website. You need to create a profile for the first time, and that's it. You are on board. And the best part is, you will also be getting an extra 200 coins as a welcome gift, which you can redeem while booking a session. After creating your profile, you can choose the tutor you want amongst the plethora of options PrepWiz offers. You can compare them on the basis of the percentiles they have scored in the test of those same topics. You can further compare them on the basis of years of experience they are having, and lastly, you can even watch the videos they have uploaded on their profiles in order to judge as to till what extent their teaching methods overlap your understanding. To ask your questions, just come to the Ask Query tab. You need to specify the subjects in which you are having a doubts, and after that, you need to choose the topic in which you are having a doubts. You can either type in your question or you can upload the photos for the same. And after that, you need to specify if you have single question or multiple questions, and then just submit. In your My Query section, you can find all the questions which you uploaded earlier. So herein you can find all your doubts at one place. And after that, you will be receiving detailed answers to all your questions. And since you will be receiving multiple answers to the same question, you can even get the tips and tricks to solve those questions faster. So no more waiting for the solutions, because now you have the gateway for efficient and quick doubt solving, PrepWiz.
quickly go sign up and don't forget to redeem those extra 200 coins. Chalo, quickly coming back to the video. Second general thing, the habit of reading newspapers. If you are someone जो already newspaper read करता है daily, very good. But अगर अभी तक नहीं करते हो, it's high time you should start reading newspapers daily. And by newspaper, I don't mean any newspaper. Try reading either the Hindu or Economic Times. And अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी, जस्ट ट्राई रीडिंग द एडिटोरियल्स, क्योंकि दोज थिंग्स कैन हेल्प यू इन योर VR सेक्शन, बट दे विल ऑल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग योर PIs, विच विल रियलाइज लेटर ऑन. ओके, सो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर्स डेली. नाउ दैट वी आर डन विद द जनरल थिंग्स, अभी कुछ चीज़ें जो सेक्शन वाइज आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर ऑल 3 सेक्शंस, VRC, LRDI एंड Quants. So I'll be telling you about those tips section wise. Firstly, starting off with VRC, जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या वो लोग जो प्रिपरेशन पहले से करते आ रहे हैं बट अभी तक उन्होंने एऑन एसेस पढ़ना शुरू नहीं किया है, उन्होंने द गार्डियन के आर्टिकल्स पढ़ने नहीं शुरू किए हैं, यू गाइस शुड स्टार्ट डूइंग दैट राइट नाउ. पीपल हु आर आस्किंग कि कैन वी क्रैक द एग्जाम इन 3 months, येस यू कैन, गिवन आप ये सब चीज़ें करो. ओके, सो स्टार्ट रीडिंग एऑन एसेस. कैट में कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ से उन्होंने डायरेक्टली पैसेज उठा के एग्जाम में दिया है, लिटरली ऐसा होता है. So start reading your essays firstly. For those people who are at a decent place right now, वो 6-8 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, अभी वो देख रहे हैं कि मैक्सिमाइज कैसे करना है. So there is this general misconception that you should attempt 2 RCs and then you should move on to VA and आपका सेक्शन सॉर्ट है. I would suggest if you are someone who is an avid reader, आप बुक्स पढ़ते आ रहे हो पहले से, आप पेपर पढ़ते हो डेली, so don't limit yourself on 2 RCs. Go till 3 at least. And even in the toughest RC, there's at least 1 or 2 questions which are doable. Okay, in my attempt, I attempted 3 full RCs, and in the 4th one, I attempted one question, and my accuracy was around 90-92%. You get an idea, right? So don't limit yourself. For VA, practice is the key. Practice as much as you can. अलग अलग बुक्स को रेफर करो. अरुण शर्मा इज द बेस्ट. उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज देखो. PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो एक खजाना है. अगर आपने उसको पूरा खाली कर दिया ना, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 99 इन VRC. नाउ कमिंग टू द मोस्ट कन्फ्यूजिंग सेक्शन, LRDI. कन्फ्यूजिंग क्योंकि इस सेक्शन का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है. कई लोगों को लगता है कि इसमें हम कितना ही पढ़ लें कम ही रहेगा. सी गाइस, द ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस. आई नो काफ़ी क्लीशे साउंड कर रहा होगा, हर कोई यही बोलता है जस्ट प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग यू कैन रियली डू. ओके, नाउ द की इज, LRDI में कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आप चारों सेट सॉल्व करके आओ. इवन इफ यू सॉल्व 2 sets out of 4, you will be getting what can I say, around 95, just a ballpark figure. थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. इन सम सेट्स जो टफ होते हैं इवन 99. सो वाइल अटेम्प्टिंग द सेक्शन इन द मॉक्स, आपको क्या करना है, बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व द सेट्स, फर्स्ट गो थ्रू ऑल द सेट्स. पहले देखो कौन सा टफ है कौन सा ईजी है. गिव 3 to 4 minutes ऑन दिस प्रोसेस. उसके बाद सॉल्व करने बैठो. यू विल ईजिली फाइंड 1 set विच इज़ वेरी ईजी एंड 1 or 2 sets विच आर ईजी टू मॉडरेट, एंड 1 विल बी डिफिकल्ट जो आपको छोड़ना ही छोड़ना है. अनलाइक VRC, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड गो फर्दर, नहीं, एक सेट छोड़ना है आपको. अगर आपको 99.9, 99.5 चाहिए देन यू कैन गो फॉर दैट सेट ऑल्सो, बट समझ गए ना. सो द बॉटम लाइन इज फॉर LRDI, सेलेक्टिविटी इज द की. अगर आपने सही सेट सेलेक्ट कर लिया देन यू आर गुड टू गो. तब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग. एंड जो मॉक की स्ट्रैटेजी मैंने पहले बताई थी, यहाँ भी वही करना है आपको. अगर फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन गलत हो रहा है बार बार, तो वो पहले प्रैक्टिस करो जाके नेक्स्ट मॉक तक. ओके, यू गॉट द पॉइंट, राइट. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, क्वांट्स. सो देयर इज दिस मिसकंसेप्शन दैट क्वांट्स में ओनली इंजीनियर्स कैन स्कोर 99. ऐसा नहीं होता है. इवन दो आई एम एन इंजीनियर, बट स्टिल ये कैट की कौन है, जेई एडवांस ही कॉन्ट्स नहीं. ओके, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई मैथमेटिशियन आगे सॉल्व करने वाला है. जस्ट लाइक VRC में दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि शशि थरूर आगे खुद सॉल्व करेंगे वो सेक्शन, नहीं. सो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होने वाले यहाँ पे. सो प्लीज़ अपने दिमाग से ये हटाओ पहले तो कि यार आई एम नॉट एन इंजीनियर, सो बस मुझे कट ऑफ पार करना है कॉन्ट्स में. ऐसा नहीं है. यू कैन रियली एक्सेल इन दैट सेक्शन. सो द पीपल हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ और दोज हु हैव स्टार्टेड रिसेंटली, यू गाइस शुड स्टार्ट विद अरिथमेटिक, बिकॉज अरिथमेटिक कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्ट सेक्शन. सो पहले अरिथमेटिक से स्टार्ट करो, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो पहले तो. स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड देन मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस. LOD2 हो गया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आई मीन LOD2, LOD3. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग सिंस द लास्ट 6 or 8 months, बस आप लोग फोकस करो. अब अरिथमेटिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका. सो वाइल यू अटेम्प्ट योर मॉक्स,
फोकस कि आपकी एफिशिएंसी अरिथमेटिक में 100% रहे, ओके, क्योंकि उसके क्वेश्चन श्योर शॉट आने ही आने हैं. इट्स लाइक पेपर ऑलरेडी आउट है एंड योर कोर्स इज ऑल्सो फिक्स्ड, ये रहे चैप्टर्स, इनसे क्वेश्चन आने हैं. सो फोकस कि उससे क्वेश्चन गलत ना हो. आफ्टर अरिथमेटिक यू कैन पिक अप एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, एंड मैंने देखा है कई लोग ज्योमेट्री में बहुत स्ट्रगल करते हैं. मैनी पीपल फाइंड फंक्शंस अ टफ टॉपिक. गाइज, एक रूल है क्वांट्स में, जितना ज़्यादा टफ वो टॉपिक होगा उतने ईजी क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे. आई एम नॉट सेइंग सारे ईजी आएंगे, बट टू सम एक्सटेंट येस. फॉर एग्जाम्पल लॉग्स, फंक्शंस. सिमिलरली ज्योमेट्री में इफ़ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज बाय हार्ट, तो जितने क्वेश्चंस हैं ना वो ईजी होते हैं, यू कैन सॉल्व देम. तो माइंड में एक इमेज बन जाती है ना कि दीज चैप्टर्स आर टफ, तो मुझसे नहीं होंगे. ऐसा नहीं होता है. जितना ज़्यादा टफ चैप्टर उतना ज़्यादा ईजी क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज़ कोई चैप्टर छोड़ो मत. अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट बेसिक्स हर चैप्टर रिकवर करो, बिकॉज यू नेवर नो किस चैप्टर से कितने ईजी क्वेश्चन आ जाए, एंड इट कैन अवॉर्ड यू +3, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस पैटर करता है. एंड लास्टली दोज हु आर प्रिपेयरिंग सिंस द लास्ट 6 और 8 months, पॉइंट्स में ऑलरेडी बेसिक्स उनके कवर हो चुके हैं. यू गाइज कैन मूव ऑन टू एडवांस टॉपिक्स, क्योंकि पॉइंट्स में टू रीच अ सर्टेन परसेंटाइल, ठीक है आपने सब कवर कर लिया, बट टू टेक द सेक्शन टू द हाइएस्ट पॉइंट 99.5 और 9, आपको सारे एडवांस टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे. लेंदी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. यू गाइज स्टिल हैव द टाइम टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस ऑन दैट. ठीक है, तो जो लोग पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, यू गाइज हैव द चांस टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स. बट अगेन, मैक्सिमाइज करते करते बेसिक्स को मत भूलना. कीप ऑन गिविंग मॉक्स, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, स्पेशली क्वांट्स में, क्योंकि अगर डी-डे के दिन कोई ईजी क्वेश्चन अगर बाई चांस गलत होता है तो बहुत दुख होता है. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू गाइज वॉन्ट, मैं हर सेक्शन के लिए अलग इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकता हूँ. अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो मुझे बताना. मैं हर सेक्शन में अलग वीडियो भी बनाऊंगा, फोकसिंग ऑन टॉपिक्स एज वेल. एंड आई नो दैट डूइंग ऑल दीज थिंग्स विल रिक्वायर लॉट ऑफ योर टाइम. मॉक्स देना है, फिर उनको एनालाइज करना है, प्रैक्टिस भी करना है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो साथ में जॉब भी करना है. बट गाइज द थिंग इज़, हमारे हाथ में अभी सिर्फ 3 महीने हैं. वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी रिस्क. ऑल राइट, वी स्टिल हैव अ चांस टू क्रैक दिस एग्जाम इन 3 months. आई एश्योर यू, आप क्रैक कर सकते हो ये एग्जाम, गिवन आप होलिस्टिकली ये सारी चीज़ें फॉलो करो. एंड सो डेली आपको एटलीस्ट 3 to 4 hours देने ही पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन को. ऑल राइट, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, कैट का 33% पार्ट ईजी होता है. एनीबडी कैन सॉल्व इट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड. ठीक है, सो कभी भी डिमोटिवेट नहीं लगे ना अगर कुछ भी. कीप इन माइंड 33% पार्ट ईजी होता है. यू कैन सॉल्व दैट पार्ट, एंड 33% सॉल्व करोगे ना, परसेंटेज काफ़ी अच्छा आएगा. कीप इन माइंड, अगर आप 50% सॉल्व करते हो, यू टच 99. ओके, आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना होता है कैट में. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे गाइज. आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा. इफ येस तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, ड्रॉप योर कॉमेंट्स, एंड टिल देन स्टडी हार्ड, प्रिपेयर रिलेंटलेसली. ड्रॉप का ख्याल नहीं आना चाहिए मन में, अभी भी टाइम है, क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, कोई इशू नहीं है. ऑल राइट, टिल देन स्टडी हार्ड. आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. व्लॉग्स डालता रहूँगा मोटिवेट करने के लिए. इफ़ यू गाइज कीप सपोर्टिंग, ओके, पीस आउट.